Politics Part 2, Class 10th. Chapter which we are doing, that is Federalism. This is Part 4. I hope you people are watching the videos and making your notes. Let's get started today's topic. Now, which we are doing, that the topic is what? How federalism is practiced in our country. How federalism is practiced. So in the previous chapter, what we have discussed, previous we have discussed in the part 3, that is what federalism is practiced. In that we have discussed what about linguistic state. In our country, the first phase of federalism, how it is practiced in our country, that is dividing the states on the basis of language, is known as linguistic state, that we have discussed in the previous video. Today, the second phase through which the federalism has practiced, the second step which has been taken, that the language policy. Language policy has been adopted by the Indian government to maintain the unity of the country and to safeguard everyone. Everyone must feel the safe in this country. That is why to practice a successful federalism, the language policy has been adopted by Indian constitutions. Let's understand very clearly that what is language policy. So students, welcome to the today's topic. This is part 4. We are going to discuss language policy. So before entering into this chapter, let's see that India is one of the vast country. India is one of the vast country. Can you imagine that how many languages do we have in the India? Can you imagine that how many languages do we have in India? I think you people have started counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is up to you that how much you can count. Understood? In India, there are variety of language. Now, if I will start speaking, if I start speaking, then I can modify the language as per my convenience. So that will become a new language. Wherever you go in our country, from Kanyakumari to Jammu Kashmir, you will find people are speaking variety of language. Then it is quite difficult to maintain the unity of the country. But giving freedom to everybody's language, every individual's language, it is possible to maintain unity of the country. So maintain our constitution has what made a language policy. The question was what? How many languages do we have in our country? Did you find? Did you find? You have to comment, right? Next, the answer depends on how one counts it. कौन कितना काउंट कर सकता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि बता सके कि कितने लैंग्वेज हैं. बहुत सारे लैंग्वेज होंगे, पता नहीं होगा हम लोगों को ऐसा. The latest information that we have is from the Census of India held 2001. As per the 2001 के census के हिसाब से हमारे भारत में 1500 distinct language people बात कर रहे हैं, जिनके मदर टंग में मेंशन किया गया है. There are 1500 languages in our country. Can you imagine the huge number? मतलब एक कंट्री के अंदर 1500 तरीके के भाषा बोला जाता है जो उनकी मदर टंग है. ये अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस निकला है. दिस लैंग्वेज वाज ग्रुप्ड, दैट मींस ये जो लैंग्वेज निकाले गए ना, ये लैंग्वेज को क्या ग्रुप किया गया, क्योंकि 1500 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना कि ये इतने सारे लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट, तो कुछ लैंग्वेज को ग्रुपिंग किया गया. जैसे कि आप मानो मध्य प्रदेश में कुछ लोग कुछ लैंग्वेज बोलते हैं तो उसको हिंदी से मिला जुला होता है, तो वो ग्रुपिंग कर दिया गया कि दिस इज द लैंग्वेज बिलोंग्स टू द हिंदी फैमिली. तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज लाइक भोजपुरी,
मागाही, बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, Rajasthani, Billi, and many other very were grouped together under Hindi. Everybody भोजपुरी हिंदी जैसा, बिल्ली हिंदी जैसा, राजस्थानी हिंदी जैसा, छत्तीसगढ़ी हिंदी जैसा, बुंदेलखंडी यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ कुछ इलाकों में। तो ये सब लैंग्वेज को हिंदी में कंसिडर किया गया, मतलब लैंग्वेज को ग्रुपिंग किया गया। ग्रुपिंग करने के बाद भी हमारे भारत में सेंसस ने क्या फाइंड आउट किया, देयर आर 114 मेजर लैंग्वेजेस, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस को क्या कर दिया गया, 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों को शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला गया। 8 शेड्यूल्ड में 22 लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया गया। किस बेसिस में आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें प्रोपोर्शन, दैट मींस मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स वे स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को। अभी एक दो बोलने वाले होंगे तो उस लैंग्वेज को तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। पहले देखो, भारत में लैंग्वेज पॉलिसी लाने के लिए भारत में कितने लैंग्वेज है, कितने लैंग्वेज को कितने लोग बात कर रहे हैं, वो तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो भारत में ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास 114 मेजर लैंग्वेजेस आए, जिसमें 22 लैंग्वेज ऐसे थे जिसको हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या किया गया, मेंशन किया गया, and it was what it has called scheduled language. Other are called non-scheduled language. Those languages were not mentioned in the 8th schedule of constitutions. They were known as what, non-scheduled language. In terms of language, India is perhaps the most diverse country in the world. हम जो लैंग्वेज के बेसिस, इफ वी सी, आवर कंट्री इज कंप्लीटली अ डाइवर्स country. The next thing is what? Next thing comes that these languages were grouped together under some major language. For example, यही सब चीजें यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हमारे भारत में जो 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, कितने प्रोपोर्शन स्पीकर्स है। जैसे आसामी बोलने वाले 1.28, हमारे भारत में जितने पॉपुलेशन है उसके 1.28% क्या आसामी बोलते हैं। जितने हमारे भारत में है उसका 8.11 बंगाली बोलते हैं, बोडो बोलते हैं, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत ये देखो, नॉन जो एन लिखा है ना, इट इज नेग्लिजिबल, मतलब इतने कम लोग हैं कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 22 से हम 21 कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत बोलने वाले बहुत कम है, तो इसीलिए इसको एन का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। संथाली, सिंधी, तमिली, Telugu and Urdu. These many peoples are there in our country speaking. 22 scheduled language has been finalized as per the 8th schedule of the constitutions. And grouping करने के बाद कितने 114 language, that means 114 language has been identified. And how many are the scheduled one, 22 language were the scheduled one. So this is one of the what brief has been given regarding the language which is there in our country. Let's discuss how the language policy has been adopted by the government. So in this map you can see that here you can see what this is the complete India's map, where in which state what language peoples were speaking. You can see that in Andhra Pradesh Telugu is the major language, but here see Lambadi, Urdu, चेंचू, उसके बाद ये कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, मगर यहाँ पे टुन टुन, यहाँ कोनकानी गोवा आ गया। फिर डेकान में देखो मराठी, डेकान, आंध्र, कोनकानी, मतलब कितने लैंग्वेज मराठी के अंदर, यहाँ पे भी बहुत सारे लैंग्वेज, मतलब ओडिया तो मेजर लैंग्वेज होता ही है, मगर उस स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज भी बोली जाती है। वैसे ही आप देखोगे तो दूसरा मैप विच इज आई हैव मेंशन्ड हियर, दैट इज सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में
जो लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, मेजर लैंग्वेज तो उसका जैसे उड़ीसा है तो उड़िया है, आंध्र है तो तेलुगु है, तो उसका सेकेंड लैंग्वेज क्या वहां पे बोली जाती है, बेस्ड ऑन दैट इट हैज बीन गिवन यू टू फॉर अ रेफरेंस, राइट। Next thing, how what is the language policy? A second test for Indian Federation, that was a language policy. What was the first state for the Indian Federation? First state was the states, dividing the states on the basis of language. That was the first test of Indian Federation. Second test of the Indian Federation was what? Language policy. That means सभी लोग जितने भी भारत में रह रहे हैं, हमने देखे 1500 से ज्यादा लैंग्वेज भारत में बोली जा रही है, तो सबको तो ये फील करवाना पड़ेगा ना कि भारत आपका है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, लैंग्वेज पॉलिसी, सबको इसमें से पता चले कि हाँ भाई हमारा है। So anyway, second test of the Indian Federation was language policy. Then our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे भारत में national language किसी भी language को status में नहीं दिया गया। हिंदी was identified as a official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. एक चीज समझना, हमारे भारत में क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हाँ, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियन। आप समझ रहे हो? भारत में मात्र 40% लोग ऐसे हैं जिनका मदर टंग क्या है, हिंदी है, मतलब ग्रुपिंग करने के बाद। बात समझ रहे हो? यहाँ पे हिंदी के अलावा दूसरा कोई लैंग्वेज ही नहीं है जिसमें लोग बात करते हैं। आप समझ लेना, 40 दूसरा जो लैंग्वेज है 40% से नीचे ही है। बात समझ लो। देयर वर मेनी सेफ गार्डेड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, मतलब भारत में बहुत सारे लैंग्वेज जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए क्या किया गया, हिंदी के दैट मीन देयर वर मेनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the constitution. 21 अभी समझो क्यों, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला क्या 22, here I am saying 20 21, I am the liar? No, I am not liar. I am telling there one language was there, can you remember? I said it can be negligible, that is Sanskrit. संस्कृत लैंग्वेज कैन बी नेग्लिजिबल, उसको हम रिमूव करेंगे तो यहाँ देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट वॉच, नेक्स्ट कम्स अ कैंडिडेट इन एग्जामिनेशंस। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया भारत में, जैसे सेंट्रल है, स्टेट है, कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए, तो वो एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, मतलब जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें किसी भी लैंग्वेज में वो क्या एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज है, कन्नड़ में कर्नाटका में कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। मतलब हमारे भारत में कोई भी सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पोजीशन है जिसके लिए एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आप जो हमारे शेड्यूल लैंग्वेज है 21, उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, राइट। और हर स्टेट भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, राइट। इसके बाद आपका आता है एंटी हिंदी एजिटेशन। 1965 में एक एंटी हिंदी, मतलब हिंदी के खिलाफ लोग बहुत भड़क गए थे, हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ। ये क्या था, इसको थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। अभी आप अच्छे से समझना, 1937 में भी एंटी हिंदी एजिटेशंस वाली ग्रुप फॉर्म हो गई थी, मगर 1965 में इसका दूसरा फेज था। तो हम इस चैप्टर के आपके सिलेबस के हिसाब से 1965 में एंटी हिंदी एजिटेशंस क्या हुआ था उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या, दिस इज नॉट अंकल हिंदी एजिटेशन, दिस इज एंटी हिंदी एजिटेशन, राइट। देन देखो कर्नाटका, मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु, कर्नाटका, साउदर्न स्टेट में ये हुआ था। यहाँ देख रहे हो वो लगभग ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर में क्या लिखा होता है भाई, यहाँ पे उनके लैंग्वेज में लिखा था, बीच में हिंदी और फिर इंग्लिश, मगर ये हिंदी को लोग मिटा दिए,
उनका लैंग्वेज रहा, मतलब हिंदी को लोग नफरत कर रहे थे यार। यहाँ पे देखो, no wind, English to be continued, no compulsions to learn हिंदी। हम ये कंपल्सरी नहीं है हिंदी समझना। नो हिंदी, इंग्लिश फॉर एवर बोला जा रहा है। स्टूडेंट एजुकेशन, स्टूडेंट्स उस समय बोल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनों में लिखा गया है डाउन डाउन, हिंदी डाउन डाउन डाउन। ये हुआ क्या है, ये सब है क्या, समझ में नहीं आ रहा यार। ऐसा कब हुआ था कि हिंदी के खिलाफ सब भड़क गए थे? चलो अच्छे से थोड़ा देखते हैं हिंदी के खिलाफ लोग कब भड़के हुए थे। ये कहानी मैं बता दूं, जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था। सिन्हालास से इंपॉर्टेंट, सिन्हालास से बहुत, ये सिन्हालास क्या थे, अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए और ऑफिशियल लैंग्वेज बना के अपने ही चीजों को वो ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे। सेम चीज हमारे जो यहाँ पे इंडिया में भी क्या किया गया, 1965 में एक छोटा सा स्टेप लिया गया। क्या स्टेप था कि according to the constitution, the use of English for official purpose was stopped in 1965। इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश ब्रिटिश का लैंग्वेज है, इसको हमको नहीं रखना है, नहीं करना है करके 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा किया गया कि इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्पस में हम यूज कर रहे हैं उसको अब से नहीं करेंगे, हिंदी कंपलसरी है। हिंदी को हमको क्या करना है, हम ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज करना है। और जितने नॉन हिंदी स्टेट थे, नॉन स्पीकिंग पीपल्स थे, ये सब भड़क गए। जैसे कि तमिलनाडु, बहुत वायलेंट वॉर, जैसे मैंने आपको कुछ पिक्चर दिखाए हैं, लोगों ने हिंदी जहां देखे, जहां हिंदी लिखा है उसको तोड़फोड़ कर दिया। इवन हिंदी बोलने वाले लोगों को भी मारपीट किए। और वो नॉर्थ इंडिया में तेलुगु बोलने वाले लोगों को और साउथ इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोगों को अपोजिट में पूरा तोड़ फोड़ जोर से हुआ था। राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या रेस्पॉन्ड की थी एग्री होने में। फिर क्या किया था, इंग्लिश को, इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज रखना पड़ा, क्योंकि आप इंग्लिश हटा दोगे तो वो लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए इंग्लिश को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज रखना पड़ा। मैनी सिटी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्पॉन्स बाय द एग्रीइंग to continue use English along with the Hindi for a official purpose. Many critics think this solution favored the English speaking elites. Promotion of Hindi continue to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that central government can impose Hindi on state where people speak different languages। मतलब promotion continue रहा, ऐसा मतलब था ही नहीं कि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है और दूसरे लैंग्वेजेस को डिमोट किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। Speak different languages, the flexibility shown by Indian politics leader help our constitution avoid the kind of situation and Sri Lanka find itself in। श्रीलंका का क्या था, इसके अंदर रह गया था और हम इस सिचुएशन से बाहर आए थे। हमारे जो पॉलिटिशियन थे, दे हैव डन समथिंग एंड वी हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो भारत में छोटा सा प्रॉब्लम क्या हुआ था, इंग्लिश को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज से क्या हटाया कि लोग डांस करने लग गए थे। और वंस डांस खत्म हो गई तो भारत में फेडरलिज्म, मतलब आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया, उनको स्टेटस दिया गया। भारत में फिर क्या किया गया, लैंग्वेज पॉलिसी, हर लैंग्वेज को अपने स्टेट में वो इसको फॉलो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जॉब देना है, जॉब करना है तो आप 22 लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, 21 लैंग्वेज यूज कर सकते हो, क्योंकि संस्कृत तो नेग्लेजिबल था, इतने बहुत कम थे प्रोपोर्शन बात करने के लिए। एनीवे, आपको ये जो हमारा टॉपिक है समझ में आई होगी। सेकेंड जो है, हम थर्ड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।